New Progressive Public School, welcome to e-learning education. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's your science teacher, Ms. Umaima. Introduction to Science. Our first chapter, Structure of Living Organism. Parts of flower, it's our today's topic. The parts of flower are arranged in circles or whorls on the receptacle, which is the flattened tip of the flower stalk or pedicel. The calyx is the outermost wall and is composed of all small green leaves called sepals, which protect the bud. The corolla is the colored part of the flower and is the second wall from the outside. It is composed of brightly colored scattered leaves called petals, which protect the inner parts and also attract insects for pollination. What is the part of flower? फ्लावर के पार्ट्स अरेंज होते हैं एक सर्कल में, ठीक है, रिसेप्टिकल पे, जो और फ्लैटन टिप होते हैं जिसको हम फ्लावर स्टॉक और पेडिसल भी कहते हैं. कैलिक्स वो बाहर का हिस्सा होता है फ्लावर का जिसमें स्मॉल लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेपल्स. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज सेपल, ठीक है. सेपल प्रोटेक्ट करती है बट को, सेपल प्रोटेक्ट करती है बट को. बट वो हिस्सा जहाँ से बेबी प्लांट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है. द करोला इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. करोला वो कलर पार्ट है फ्लावर का जो होता है बाहर की तरफ और कंपोज करता है ग्रीन पेटल्स, यानी ग्रीन कलर हिस्सा प्लांट का जिसको हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है. सॉरी, ब्राइटली कलर, ब्राइट कलर कंपोज करता है जिसको हम पेटल कहते हैं और इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट भी करता है, ठीक है. द एंड्रोशियन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच forms the third wall. It is composed of stamen. Each stamen has a part. A filament has a thin stalk and anther which is attached to the filament. एंड्रोशियम वो मेल पार्ट है फ्लावर का जो कंपोज करता है स्टेमन, ठीक है. स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर. एंथर एक थिन स्टॉक होती है, ठीक है, और एंथर वो पार्ट होता है जो अटैच होता है फिलामेंट से. गायनोशियम फीमेल पार्ट है जो कंपोज करता है कार्पल से. हर कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं. ओवरी वो सोलिन बेसल पार्ट जो कंटेन करता है फीमेल सेक्स जिसको हम ओव्यूल कहते हैं. स्टाइल एक थिन स्टॉक होती है. स्टिग्मा एक फ्लैट टिप होती है कार्पल पे. स्टिग्मा ज़्यादातर स्टिकी और रिसीव करती है पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के टाइम पे जो बाद में फ्रूट और सीड बना देते हैं ओवरी में. There may be some small glands or nectaries at the base of the carpel which produce a sweet juice called nectar. This attracts insect for pollination. कुछ नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं कार्पल के बेस में जो मीठे होते हैं जूस की तरह, उनको हम नेक्टर कहते हैं. वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को पॉलिनेशन के लिए. वेरिएशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर, किस किस तरीके के फ्लावर्स होते हैं. ये हमारे पास एक्चुअली लुकिंग फ्लावर जो हैं वो 4 हैं और ये एक हमारे पास 5th है, ठीक है. इन मैनी फ्लावर्स the petals and sepals are joined together to form a tube-like structure as in a sweet pea and foxglove. Just look at sweet pea. इनके petals एक साथ joined हैं, ठीक है. ये tube-like structure में होते हैं, ठीक है. जिनके petals join होते हैं, sepals और petals join, उनको हम sweet pea flower कहते हैं. In some flowers like rose, the petals are free and are of the same size. They are arranged in many whorls. Just look at the rose. इसके petals बिल्कुल free होते हैं. petals पत्तों को कहते हैं, ठीक है. In some flowers like hibiscus, the carpels are fused to form a tube-like structure, and the anther are attached at the tip of this tube. Look at this hibiscus.
ये भी एक ट्यूब, लुक एट दिस ट्यूब, ये ट्यूब बाहर आ रही है और सारे पेटल्स को फ्यूज्ड कर दिया है, एक साथ बंद कर दिया है, ठीक है। In other plants, the flowers are arranged in such dense cluster that they appear to be a single flower. An example of this would be the sunflower, in which the corolla is actually composed of a number of small flowers called leaf florets, and the dense brown part is composed of very small complete flower called dice flower, which produce seeds. जस्ट लुक एट दिस, इसका हर एक पेटल अलग अलग है लेकिन साथ जॉइंट है। इस अलग अलग पेटल को हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं और इस ब्राउन पार्ट को जिसमें से सीड प्रोड्यूस होता है इसको हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, दे आर ग्रीन, आर अरेंज्ड इन एन इनफ्लोरेंस कॉल्ड स्पाइक. They have no scent or nectar. Example include wheat, maize, grass, etc. Look at this. Wheat. Look at this. Wheat is an example of spike. Spike की wheat एक example है, ठीक है? So just write down the question. Write the functions of following root, stem, and leaf. Function of root, it fixes the plant into soil. It absorbs salts, water and mineral from soil. It stores food, for example taproot. रूट प्लांट को फिक्स करती है ज़मीन में, एब्जॉर्ब करती है वाटर, प्लांट, मिनरल ज़मीन से, और फूड स्टोर करती है किसकी तरह, टैप रूट की तरह. फंक्शन ऑफ स्टेम, इट स्पेसेस आउट द लीव्स सो दैट द ईच लीफ ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट. इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ. It also transport prepared food from the leaves to all parts of a plant. स्टेम क्या हेल्प करती है, स्पेस देती है लीफ को बढ़ने में ताकि हर लीफ हवा और सनलाइट गेन कर सके. ट्रांसपोर्ट करती है वाटर रूट से लीफ तक, और ट्रांसपोर्ट करती है खाना भी लीव्स के हर पार्ट को, ठीक है. फंक्शन ऑफ लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. लीफ खाना बनाता है हर प्लांट के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं हम मैन्युफैक्चर. स्टोमेटा इन द लीफ हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा एज आई टोल्ड यू बिफोर, वो टाइनी होल्स लीफ के अंदर मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं गैस को एक्सचेंज करने में, ठीक है. मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट प्लांट इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, और डे के टाइम पे इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. सम थिक फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड. डिटेल क्वेश्चन आंसर्स. नेम एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. टाइप्स ऑफ रूट, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूट: टैप रूट, fibrous root, adventitious root. Continue in next class inshallah. Is your home assignment, make a diagram of types of root on page number 3. Thank you so much class.